نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تمام ائمہ کرام ان سے ہماری گزارش ہے اور جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یا بعد میں آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی، ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے، پڑھا لکھا انسان اور بغیر پڑھا لکھا انسان یہ برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ حضرات بھی جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ائمہ کرام ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگی سے تنگ آ کر کے یا اپنی زندگی میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہماری جو تنخواہ ہے وہ کم ہے، ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا ہے۔ جتنے بھی لوگ بچوں کو پڑھانے والے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سے آپ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ پڑھانے والے کم تنخواہ میں پڑھاتے ہیں، لیکن کہیں کہیں پہ 10,000 اس کو مل جاتا ہے، کہیں کہیں پہ 15,000۔ لیکن ایک امام کی زندگی جو گزارتے ہیں ان کا رہن سہن، اس کو ابھی ہم پریکٹیکل میں اس بورڈ میں سمجھائیں گے۔ اور جو مقتدی ہوتے ہیں، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جو باہر جا کر کے کام کرتے ہیں، ان کی زندگی کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور ان کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے، ان کو بھی ہم بتائیں گے۔ لیکن پہلے ہمارے ائمہ کرام جتنے بھی ہیں مکاتب میں پڑھانے والے، اور آپ بھی جو یہاں پر ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں۔ ابھی ہم اس بورڈ میں سمجھائیں گے، اور جو مقتدی ہیں، جو باہر میں کام کرتے ہیں، جو علماء کے پیچھے اور ائمہ کرام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی ہماری کیسی ہے، دونوں میں تقابل کریں۔ دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک الگ الگ زندگی گزارنے کا اور مقام دیے ہیں، اور الگ الگ سب کا مرتبہ ہے۔ اس میں سے علماء بھی دیکھیں، اور اس میں بھی جتنے بھی مقتدی لوگ ہیں جو ان کے پیچھے اقتدا کرتے ہیں، وہ دیکھیں اپنی زندگی کو۔ آئیے پہلے ہم پریکٹیکل میں سمجھتے ہیں اور ویڈیو میں دیکھیے، اور آپ حضرات بھی غور سے دیکھیں۔ یہ ہے امام اور یہ ہے مقتدی۔ وہ اپنی اوقات کو کیسے گزارتے ہیں، اور امام صاحب جو ہے وہ اپنی اوقات کو 24 گھنٹہ وہ کیسے گزارتے ہیں، آئیے سمجھیے، اور آپ حضرات خود فرق کر لیں گے کہ امام کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ صحیح ہے یا مقتدی کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ صحیح ہے۔ یہ ہے گھڑی، 12، 1، 2، یہ 3، 4، 5، یہ 6، 7، 8، یہ 9، یہ 10، 11 اور یہ 12۔ اور یہ مقتدی کا جو لائف اسٹائل ہے، ان کا 24 گھنٹہ کیسے گزرتا ہے وہ دیکھیے۔ 12، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11۔ یہ دونوں کی زندگی دیکھیے، یہ دونوں کی زندگی اپنے حساب سے گزر رہی ہے، یہ دونوں اپنے اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں۔ پہلے ہم امام صاحب جو ہیں یہ 24 گھنٹہ کیسے گزارتے ہیں۔ امام صاحب کی صبح سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ امام صاحب 4 بجے صبح اٹھ جاتے ہیں۔ 4 بجے صبح اٹھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں، 4 بجے اٹھ کر کے فجر کی نماز، قرآن پڑھتے ہیں، اور جب 6 بج جاتا ہے، 6:30 بج جاتا ہے تو یہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور پھر بچوں کو ترتیب سے اور بہترین سے پڑھاتے ہیں۔ کچھ ائمہ ایسے ہیں جو صرف سوچتے ہیں کہ چلو بچے آ رہے ہیں، پڑھا نہیں پڑھا بس چھوڑ دیے، تنخواہ تو ہماری مل جاتی ہے۔ کچھ ائمہ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن
ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको हमेशा यह सोचना है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको इल्म के दौलत से जो नवाजा है, हम जिस तरीके से कुरान को पढ़ते हैं, मेरे पास जो बच्चा आ रहा पढ़ने के लिए, वो कुरान को हू बहू कैसे पढ़ने वाला बन जाए, हत्तल इम्कान तमाम आइमा को यह कोशिश करने की ज़रूरत है। लेकिन 50-60%, 70% इमाम ऐसे हैं जो कुरान को ठीक पढ़ते हैं, लेकिन जब मकातिब को चेक कीजिए और जब उनके बच्चा को पढ़ा करके देखिए तो बिल्कुल वो बच्चा वैसा पढ़ने के काबिल नहीं होता है। 2 साल 3 साल बच्चा मकतब में पढ़ता है, बाज के यहाँ 4 साल भी मकतब में पढ़ता है, और 10 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, लेकिन बच्चा का ना कुरान दुरुस्त हुआ, ना वो तयम्मुम का तरीका जानते हैं और ना वो नमाज़ पढ़ने का तरीका जानते हैं। तो वो इमाम साहब जो वहाँ पर थे वो क्या पढ़ाएं बताइए। इसीलिए इमाम को कोशिश करनी ये चाहिए कि हम बच्चे की ज़िंदगी को खिलवाड़ ना बनाएं। वही बच्चा 10 साल जब आपके यहाँ रहा और 10 साल में 6 साल से उम्र में शुरू किया, 4 साल आपके पास पढ़ा, जब वो बच्चा मदरसा को चला जाता है तो मदरसा में जाने के बाद क्या होता है कि वो बच्चा, मदरसा वाले कहते हैं कि इनको नूरानी कायदा से फिर से हम पढ़ाएंगे। भला बताइए, जब वो नूरानी कायदा से फिर से पढ़ेगा तो आप अपनी ज़िंदगी उनको किस तरह खपाएं, किस तरह उनको पढ़ाएं वो बच्चा को, जो वहाँ तक वो मकाम वो काबिल नहीं बन सका। इसीलिए आइमा को यहाँ गौर करने की ज़रूरत है। तो वो क्या करते हैं इमाम साहब, 1.5 घंटा सुबह बच्चे को पढ़ाते हैं। ये हम सुबह से शुरू कर रहे हैं ना, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इशरा की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर बच्चा को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बच्चे को पढ़ाने के बाद इमाम साहब का सबसे बेहतरीन नाश्ता आता है। बेहतरीन नाश्ता आने के बाद इमाम साहब दस्तरखान लगाते हैं, दुआ पढ़ कर खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के बाद इनका अगर कहीं और मदरसा में जाना हो या ट्यूशन पढ़ाना हो या और कुछ काम काज में हो, लेकिन ये हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि 12:30 बजे तक हम दूसरा काम कर लें, फिर 1 बजे फिर वो नमाज में आ जाते हैं 1 बजे। फिर उसके बाद ज़ोहर के बाद और कहीं अगर ट्यूशन हो तो वहाँ पढ़ा लिए, 3 बजे के बाद भी अगर कहीं ट्यूशन है तो वहाँ पढ़ा लिए। कुछ इमाम ऐसे भी करते हैं, कुछ इमाम ऐसे करते हैं कि दोपहर का 4 बजे, दोपहर का 3 बजे ट्यूशन पढ़ा लिए, फिर 4 बजे वो क्या करते हैं कि असर बाद इन्हीं का मकतब होता है तो वो मकतब पढ़ाते हैं, इन्हीं का अगर नहीं है तो अपना वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, और फिर मगरिब की नमाज़ होती है, मगरिब के बाद फिर वो मकतब पढ़ाते हैं। लेकिन तमाम जगहों पर ऐसा है कि सबसे बेहतरीन पढ़ने का जो वक्त होता है बच्चों का वो मगरिब बाद। तमाम जगहों पर मगरिब के बाद पढ़ाई होने से क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फजर बाद मेरा ट्यूशन है, हम ट्यूशन में चले जाएंगे, 7वां-8वां क्लास का बच्चा होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि असर बाद मेरा ट्यूशन है स्कूल के आने के बाद, इसीलिए हम असर बाद ना आ पाएंगे ना सुबह आएंगे। तो मगरिब बाद बेहतरीन पढ़ाई है, और तमाम आइमे कराम को ये चाहिए कि हम गाँव ग्राम का जो हालात है उस हिसाब से हम मकतब को लागू करें, उस हिसाब से हम मकतब को पढ़ाएं। लेकिन कुछ इमाम ऐसे भी होते हैं कि नहीं आपका बच्चा सुबह आएगा तो पढ़ा देंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएंगे। अरे भाई, आपको वहाँ पर लोग रखे हैं, आप पहले तय कर दीजिए कि हम 15,000 लेंगे, 20,000 लेंगे, तो ये ठीक है। अगर आपको 10,000 के अंदर में बच्चों को पढ़ाना है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो शुरू ही बोल देते कि हम नहीं रहते। इसीलिए बच्चों के भविष्य के ऊपर आप खिलवाड़ ना करें, बच्चों के मुस्तकबिल को सोच करके, और आप अपनी ज़िंदगी को सोचो कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको इल्म जैसी दौलत से नवाजा है और बादशाहियत जैसी ज़िंदगी हमको दिया है। मेरा अगर पेन भी गिर जाता है तो उठाने के लिए हम किसी को बोल देते हैं, वो बच्चे थोड़ा पेन उठा के, तो वो बच्चा पेन उठा के दे रहा है। आपकी ज़िंदगी इतना है, आप अपना हमेशा कपड़ा अच्छा पहनते हैं, आप खुशबू लगा के चलते हैं, और खाना पीना आपका स्टैंडर्ड रहा है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का, शाम का, और कहीं अगर बाहर निकलेंगे तो आइए हजरत चाय पी लीजिए। ये आपकी ज़िंदगी है, और बेहतरीन से आप कुरान भी पढ़ रहे हैं, बच्चों को तालीम हाथ दे रहे हैं, और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, माँ बाप के लिए दुआ भी कर रहे हैं। ये आप अपना देखिए कि आपकी ज़िंदगी कितना अल्लाह तबारक ताला ने खुशहाल रखा, और आप कितना कमा रहे हैं। 15,000 आप महीने का कमा रहे हैं, समझ लीजिए 15,000 आप महीने का कमा रहे हैं, और अल्लाह तबारक ताला ने आपको खुशहाल रखा। 24 घंटा, रात हो गई 6, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है, इशा की नमाज़ पढ़ ली है, उसके बाद फिर तालीम किए, और उसके बाद फिर लोगों को समझाना बुझाना और तबलीग का काम किए। इमाम का 3 काम है। नंबर 1, बच्चों के ऊपर खूब मेहनत करें, ऐसे बच्चों को तरतीब से पढ़ाएं कि वो 10 साल का हो जाए तो नमाज का पूरी तरतीब उसके अंदर आ जावे, उर्दू पढ़ने का तरीका, रंग ढंग सब चीज़ आ जावे, और लोगों के सामने कैसे बात करें। आप अपना मजहब को ऐसा अपना मकतब को ऐसा सेटिंग कर दीजिए, और बड़ों के ऊपर खूब मेहनत कीजिए कि जो बड़े हमारे हैं, मुक्तदी हैं, वो नमाज को नहीं आते, नमाज की फ़िक्र कीजिए, नमाज के बारे में, उसके बारे में सोचिए कि वो नमाज को कैसे आवे। और तीसरी में ये है कि हम नमाज और अजान को वक्त पर दे दें। अजान और नमाज, अगर मुअज्जिन है तो इसकी अलग सी बात है, ये इमाम को इतना काम करना ही है। और ये सब काम करने से आपको मर करके अल्लाह तबारक ताला के यहाँ आपको आखिरत में भी जाना है, और अल्लाह तबारक ताला के यहाँ आपको बनने के बाद जाना है, और अपनी ज़िंदगी का पूरा हिसाब देना है।
अब ये इमाम की ज़िंदगी का देखिए कि 15-24 घंटा वो कैसे गुजारते हैं। 5 वक्त की नमाज, इशराक की नमाज, कभी कभी वो अवाबीन की नमाज़ पढ़ लेते हैं, और महीना 2 महीना में 3 महीना में एक कुरान मुकम्मल भी कर लेते हैं। 2 टाइम बच्चों को कुरान भी पढ़ा रहे हैं और तबलीग भी कर रहे हैं, और बेहतरीन से अल्लाह तबारक ताला आपको खिला पिला भी रहा है, और ऊपर से लोग आपको पैसा भी देते हैं, 10-15 हज़ार रुपये दे देते हैं। ये है। और इमाम जितना भी तकवा मुत्तकी होकर के अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, अल्लाह तबारक ताला उसको और खुश रखते हैं। तो ये सब अक्सर इमाम 100 में से 10 को पाया जाता है कि तकवा मुत्तकी के साथ और बच्चों के ऊपर मेहनत तबलीग का काम करे। ये 100 में से सिर्फ 10 इमाम पाया जाता है। बाकी बस यूँ ही इमाम ऐसे ही रहते हैं कि हमको बस नमाज़ पढ़ा देना है, बच्चा आवे क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, और ना मकतब के कोई जिम्मेवार है, ना जिम्मेदारी है, ना कोई चेक करने वाला है, वो कुछ नहीं है। तो वहाँ पर क्या है कि हमारे गाँव ग्राम के जो सदर और जो सेक्रेटरी होते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती है कि वो अपने मकतब को नहीं सुधार सके। तो क्या ज़रूरी है कि ऐसे शख्स को जिम्मेदार बनाना। कम से कम अपने मकतब को तो सुधारिए, हमारे मकतब में कैसे बेहतरीन से पढ़ाए हो वो बच्चा। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि हमारे गांव में जी बच्चे लोग का बिल्कुल अकल नहीं है बात करने का। अकल कहाँ से आएगी? पहले जिम्मेदार का पहले अकल हो तब तो कि मेरा मकतब कैसे मुनज़्ज़म हो। आज हम बड़ों को इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सदर सेक्रेटरी अक्सर लोग जितने भी होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और बस यूं ही गांव ग्राम में थोड़ा सा वो देखें, कुछ चापलूसी करके, कुछ दलालीगिरी करके, या कुछ पैसा वाला होकर के उनको सदर बना देते हैं। लेकिन उनको खुद पता नहीं कि हमको मकतब को कैसे करना है, ना किसी आलिमों की बात मानते हैं कि हमको मकतब को कैसे सुधारना है और हम मकतब को कैसे मुनज़्ज़म करना है। हम अपने मकतब को निगरानी के लिए हम किनको रखें, कितना महीना में चेक करें, और तालीमी मयार का दर्जा धीरे धीरे कैसे बढ़ा हो, कैसे बढ़े, ये सब कभी वो सोचते नहीं है। लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग ऐसे भी सदर होते हैं, हम कहीं पर जा कर के देखें कि सदर खुद वो चेक करते हैं, और कुछ ऐसे भी सदर हैं कि खुद चेक करने के बाद कह दीजिए कि ऐसा कीजिए, तमाम लोगों को कुरान अभी 3 महीना बंद कर दीजिए और नूरानी कायदा से पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चे बहुत तरक्की, बहुत फल फूल रहे हैं। इसीलिए तमाम जिम्मेदार गांव के जितने भी हैं वो मकतब पर ध्यान दें, मुनज़्ज़म करें, और इमाम को चाहिए कि आपको वो पैसा पसंद नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, पैसा बढ़ाने के बोलिए। अगर उतना ही पैसा में आप काम कर रहे हैं तब बच्चों का जो लाइफ है, बच्चों की जो ज़िंदगी, उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपके साथ 5 साल पढ़ा, आप अल्लाह तबारक ताला के यहाँ क्या जवाब देंगे बताइए? आप अल्लाह तबारक ताला के यहाँ जवाब क्या देंगे? पूछेंगे कि ये बच्चा आपके साथ 5 साल पढ़ा, आपके पास 5 साल पढ़ने के बाद कहीं मदरसा में दाखिला के लिए गया, बोल दिया नूरानी कायदा फिर से पढ़ाना होगा, तो आप बताइए 5 साल के अंदर में क्या पढ़ाएं? हम आइमे कराम को कहते हैं कि 5 साल के अंदर में उसको 3 लाइन भी अगर पढ़ाए होंगे तो बिल्कुल ठोस पढ़ाई कीजिए उसके साथ। इसीलिए आपसे गुजारिश है, ऐसा काम आपको उम्मीद है और आपसे वाबस्ता है कि इंशाअल्लाह ऐसा काम करेंगे। ये देखिए इमाम का जो आप समझिए। अब मुक्तदी में आइए। मुक्तदी लोग 100 में से 90% लोग ये क्या करते हैं कि ये नमाज से बिल्कुल गाफिल होकर के ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सुबह सो करके उठेंगे 7 बजे, सुबह से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुक्तदी क्या करते हैं, 100 में से 90 की बात बता रहे हैं, सुबह 7 बजे सो करके उठेंगे, और 7 बजे सो करके उठने के बाद नाश्ता करेंगे, घर में जो भी बना होगा, चले जाएंगे काम करने के लिए। जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, ये सब गायब, नमाज में वो कभी आएंगे नहीं। उसके बाद इनका जो आमदनी है वो महीने का वो 30,000 आमदनी है, जो इसका महीने का 30,000, और आपका है 15,000। 15,000 आपका पूरा खाने पीने के बाद बिल्कुल सब बच रहा है। और ये जो कमा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ 30,000 कमा रहे हैं, लेकिन ना ये नमाज पढ़ रहे हैं मुक्तदी, और ना ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ना ये तबलीग का काम कर रहे हैं, और ना ये कुरान पढ़ रहे हैं, और ना दूसरे को ये दावत दे रहे हैं। ये इनको भी अल्लाह तबारक ताला के यहाँ एक बार जाना है आखिरत, और वहाँ अपनी ज़िंदगी का पूरा हिसाब देना है। आप बताइए, इमाम जो होते हैं वो दुनिया के साथ साथ इनकी आखिरत भी बन रही है, और पूरा का पूरा नेकी अल्लाह तबारक ताला के यहाँ भी भेज रहे हैं। और ये जो मुक्तदी है 30,000 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन इनके अंदर में ना नमाज है, ना कुरान है, ना दीन है, और ना कुछ ऐसे भी होते हैं मुक्तदी जो आलिमों की नाकदरी करते हैं, उलमा की नाकदरी करते हैं, और वो सोचते हैं कि हम अपना बच्चा को बहुत बेहतरीन जगह पर पढ़ाएंगे। अल्लाह की कसम, बहुत ऐसे लोग हैं जो उलमा की नाकदरी करके अपना बच्चा को लाख मदरसा में पढ़ाएं, वो बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता है। बहुत ऐसा आप दिखा पाइएगा जो आलिमों की नाकदरी किया हो, आलिमों की बेइज्जती किया हो, और उसका बच्चा वो कहीं मदरसा में दाखिल होकर के आलिम बन गया हो, ऐसा हरगिज़ कहीं नहीं देखिएगा। इसीलिए बहुत ऐसे मुक्तदी होते हैं जो उलमा की नाकदरी करते हैं, और बहुत ऐसे मुक्तदी हैं जो आलिमों के साथ उठना बैठना, और कभी कभार अगर मिले तो सलाम, मुसाफा, दुआ, लेन देन, ये सब पूछने से क्या है, सिर्फ इमाम को ये सलाम हंस मुख के जवाब देना, सलाम करना, इसके वजह से अल्लाह तबारक ताला इसके वजह से इनको खुशहाली रखते हैं। लेकिन ये 30,000 इसलिए ये कमा रहे हैं कि ये ईमान के ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये मुक्तदी जो हैं 30,000 रुपया कमा रहे हैं, कोई 40,000, 50,000 सब कमा रहे हैं, लेकिन वो ईमान के ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हैं। जो यही शख्स अगर वो नमाज, ईमान, ये सब पर मेहनत करने लगे, इसका आमदनी कम हो जाएगा।
اسی لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایمان پر بھی محنت کرتے ہیں اور دنیا میں کچھ ان کو پیسہ بھی مل جاتا ہے تاکہ ان کا رہن سہن ہو، کھانے پینے کا کچھ اسباب مہیا ہو جاوے۔ اور یہ جو ہیں یہ مقتدی جو ہیں، اب ان کا جو 30,000 روپیہ ہے اور یہ نماز اور یہ قرآن اور یہ بچوں کا تعلیم ان کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ خوش کیسے ہوں گے؟ یہ پیسہ سے ہم مقتدی کو، یہ امام کو خوش کر دیں، کوئی دین کا کام میں خرچ کر دیں، کبھی ہم مدرسہ بنوا دیے، کبھی مسجد بنوا دیے، اور ساتھ ساتھ اس میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ جتنے بھی یہاں پر ہیں ائمہ ہیں اور جو آپ جو ویڈیو میں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے اپنے اپنے مساجد میں یہ اعلان کر دیں کہ جو بھی شخص آوے چندہ کے لیے 20 روپیہ دے دیجیے، جو بھی شخص آوے چندہ کرنے کے لیے 20 روپیہ دے دیجیے۔ اس میں یہ فائدہ ہوگا، یہ تجربے کی بات ہے، فائدہ یہ ہوگا ایک گاؤں میں 50 گھر ہے، ایک گاؤں میں 50 گھر، اگر 20 روپے بھی چندہ کرنے والے کو مل جاتا ہے تو 1000 روپیہ ہو جاتا ہے، اور 20 روپیہ دینے میں اس کو بھاری نہیں پڑے گا۔ اسی طرح عوام اور مقتدی یہ سوچ لے کہ ہم کو کم سے کم 20 عالم بھی پورے سال بھر میں بھی اگر آئے گا تو ہم 20 روپیہ دیں گے۔ اسی طرح اگر ہم 30 عالم بھی آوے، 40 بھی آوے، تو اگر 20 روپیہ کر کے دیں گے تو نہ دینے والے کو تکلیف ہوتا ہے، نہ اخر ہوتا ہے، لیکن جو چندہ کرنے کے لیے آتا ہے ان کو کسی بھی صورت میں خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک گاؤں میں 1000 اگر مل گیا تو ان کا مدرسہ بھی چلے گا، دن بھر میں 2 گاؤں آرام سے گھوم لے گا، ان کا مدرسہ بھی چلے گا اور یہ سب کام ہوگا۔ اسی لیے ہم لوگ یہ چاہیے کہ ائمہ بھی اپنے کام کو ہو بہو اپنی ذمہ داری لے کر کے بچوں کو بھی پڑھاوے اور مقتدی کا بھی خیال رکھے۔ اگر یہ انجینئر ہو کر کے، مقتدی اگر انجینئر ہو کر کے 2 لاکھ بھی مہینہ کمائیں گے اور امام صاحب 10,000 بھی کمائیں گے، لیکن دونوں ایک راستہ سے گزریں گے نا، تو یہ امام کو دیکھ کر کے ہماری ماں اور بہنیں پردہ کرنے لگے گی اور سلام کرے گی، لیکن یہ جو 2 لاکھ والے انجینئر صاحب راستے سے گزریں گے، ہماری ماں بہن کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے کہ کتنا آمدنی کیا نہیں، یہ صرف اور صرف یہ علم کے دولت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو قرآن سے نوازا، حافظ قرآن بنایا، عالم بنایا، علم سے نوازا، یہی وجہ ہے۔ آپ اگر حافظ قرآن ہے تب تک آپ کو حافظ ہی کہیں گے، اگر آپ حافظ قرآن، آپ قرآن بالکل بھول گئے ہیں، آپ کو کوئی حافظ صاحب نہیں کہیں گے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے مکتب کو بھی مضبوط کریں، اور میں کرام ہے وہ یہ سوچ لیجئے کہ ہم کو کم پیسہ میں آپ کا آخرت بھی بن رہا ہے، یہ ہم کو اپنے سے اوپر والے کمانے کا نہیں دیکھنا ہے، ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے کہ وہ عمل کیا کر رہے ہیں، آخرت کے بارے کیا کر رہے ہیں، ان کو دیکھنا ہے، اور آمدنی میں آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ اور بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں علماء جو صرف پیسہ پیسہ پیسہ، ان کا مرتبہ، ان کا احترام، ان کا یہ سب باقی نہیں رہتا۔ جو علماء پیسہ پیسہ صرف کریں گے، وہ پیسہ کمائیں گے نہیں کمائیں گے الگ سی بات، ان کا عزت احترام ان کا باقی اتنا نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے پیسہ پیسہ نہیں کرنا، پیسہ آپ کی زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ خوشحالی لائیں گے، لیکن آپ ہمیشہ یہ ڈٹا ہوا رہے، ہمیشہ یہ عزم مصمم کر لیں کہ ہم کو صرف دین کا کام کرنا، دین کا کام کرنا، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک نہ ایک دن پیسہ ضرور دیں گے۔ خیر، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔